بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ میری چچی جان نے مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ مجھ سے تو اپنی ماں کے جانے کا دکھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چچی جان نے مجھے سارے گھر کے کام پر لگا دیا۔ میری ابھی عمر 8 سال تھی۔ مجھے تو گھر کے کام کاج کا پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن جب روٹیاں پکاتے میرا ہاتھ جل گیا اور میں چلانے لگی تو چچی جان نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ میری بیٹی کی نیند خراب کر رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ وہ سو رہی ہے، تو تمہیں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھ ہی جل گیا نا، مر تو نہیں گئی۔ تم شروع سے ماں بیٹی میری بیٹی کی دشمن تھی اور آج بھی وہی دشمنی دکھا رہی ہو۔ برداشت نہیں ہوتی نا تم سے میری بیٹی کی نیند، اسی لیے ایسا کر رہی ہو۔ پتہ نہیں کون سی چوری کی تھی تمہاری دادی جان کی جو تمہیں میرے پلے باندھ دیا۔ اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تم سے، تب تک میرا ہی خون جلاتی رہنا اور یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑتی رہنا، جیسے تمہارا باپ اور تمہاری ماں کوئی قارون کا خزانہ چھوڑ کر گئے ہو میرے لیے۔ اور کہنے لگی کہ کم سے کم تمہارے لیے کچھ بنا کر تو مرتے، خود کا بوجھ اتار کر میرے سر ڈال گئے اور خود سو گئے سکون سے جا کر قبر میں۔ چچی کی زہر سے بھری کڑوی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ کاش اماں اور ابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے، یا مجھے کوئی ان کے ساتھ ہی زندہ قبر میں دفنا دیتا تو آج میں اتنی کڑوی باتیں نہ سنتی۔ چچی جان ایسا بول کر مجھے حکم دے کر گئی تھی کہ اب اٹھ کر یہ ساری روٹیاں بھی بنا لو اور برتن وغیرہ بھی دھو کر باورچی خانہ صاف کر دو، پھر تمہیں گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، جتنا کھانا کھاتی ہو اتنا کام بھی کر لیا کرو۔ اور میں وہیں باورچی خانے میں نیچے بیٹھ کر بنا آواز نکالے رو رہی تھی۔ اس وقت میری آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا جو مجھ پر رحم کھا کر میرے سر پر ہاتھ ہی پھیر لیتا۔ میرا نام سونیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جو کہ بہت منتوں اور مرادوں سے ملی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پانے کے لیے بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا تھا، کیونکہ میری ماں کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ اب آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہمارے شہر کی کوئی بھی ایسی ڈاکٹر نہیں تھی جس کے پاس میری ماں نہ گئی ہو علاج کے لیے، اور ہر جگہ سے میری ماں کو نا امیدی ہی ملی۔ جب ڈاکٹرز کی طرف سے امید ختم ہو گئی تو امی جان نے درگاہوں پر جا کر دعائیں مانگنا شروع کی۔ جہاں پر جو کوئی بھی درگاہ بتا دیتا تو وہاں پر منت مانگنے چلی جاتی۔ میرے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا میرے ماں باپ کے پاس۔ ایسا کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا ہر سکھ موجود تھا جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ بس کمی تھی تو صرف ایک اولاد کی، اور یہ کمی اس سکھ پر بھاری پڑ گئی۔ میری ماں اللہ پاک کی راہ میں اتنا دیتی کہ اللہ پاک کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وہ کسی بھی فقیر کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ اگر کھانا کھا رہی تھی تو اپنی پلیٹ کا کھانا اٹھا کر فقیر کو دے دیتی اور کہتی کہ دعا کرو اللہ پاک مجھے اولاد عطا کرے۔ میری امی میرے بابا جان سے کہتی تھی کہ میں بہت ہی بد نصیب ہوں جو آپ کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ بابا جان اکثر سمجھایا کرتے تھے امی جان کو کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر میری قسمت میں اللہ پاک نے اولاد لکھ دی ہے تو وہ مجھے کسی بھی صورت میں مل کر ہی رہے گی، چاہے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ لے، وہ اللہ پاک کا لکھا ہوا کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ معجزے اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور تم دیکھنا، مجھے یقین ہے کہ اپنے اللہ کی ذات ہے، وہ مجھے ایک دن ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اور ابو جان امی جان سے کہتے کہ تم اتنا پریشان یا دکھی مت ہوا کرو، میری وجہ سے تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، اور یہ میری خود کی قسمت ہے، جو اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے منظور ہے۔ وہ میرا مالک ہے، اس کا نام رحمان ہے، وہ مجھ پر ضرور رحم کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو مجھے یقین ہے اپنے اللہ پاک کی ذات پر وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ امی جان نے مجھے بتایا کہ اس دن ابو جان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جس دن ان کو پتہ چلا کہ وہ بابا بننے والا ہے۔ ایک دن اچانک سے امی جان کو چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بابا جان بھی گھر میں موجود تھی کیونکہ وہ اپنی جان پر جان نچھاور کرتے تھے، وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی انہیں۔
बाबा जान को अम्मी जान की ज़रा सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती। उनको जैसे ही चक्कर आए तो बाबा जान फ़ौरन ही अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने बाबा जान को बताया कि आप बाबा बनने वाले, तो बाबा जान इस कदर खुश हो गए थे कि जैसे दुनिया की सारी दौलत उनके हाथ आ गई हो। उनका बस चल जाता तो वो वहीं पर ढोल बाजे बजाने लग जाते, पर अस्पताल था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले मरीजों का भी ख्याल रखना था। बाबा जान ने वहाँ पर जितनी भी नर्सेज मौजूद थी सबको अम्मी जान का सदका उतार कर दिया। बाबा जान की जेब में उस दिन जितने भी पैसे थे बाबा जान ने सभी निकाल कर दे दिए थे, क्योंकि उनको इतनी बड़ी खुशी की खबर मिली थी। अम्मी मुझे बताया करती थी कि जब से तुम मेरे पेट में आई थी तब से तुम्हारे बाबा जान मुझे कोई भी काम करने ना देते। वो हर काम खुद ही करते थे और खाना तक कभी कभार खुद बना लेते। वो अपने हाथों से मुझे पानी और खाना खिलाते, और ये पूरे 9 महीने उन्होंने मेरा ऐसे ख्याल रखा जैसे एक माँ अपने नौनिहाल बच्चे का ख्याल रखती है। एक दिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब होने लगी तो अब्बू बहुत परेशान हो गए। अम्मी का दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था, वरना अम्मी के बदले ये सारे दर्द वो खुद पर सह लेते। अल्लाह पाक ने इसीलिए तो माँ के कदमों में जन्नत रखी है, क्योंकि वो अपनी औलाद को पैदा करते वक्त उसको पालने में जितनी तकलीफ़ें देखती है हम सब तो उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और ना ही औलाद माँ का कभी एहसान उतार सकती है। इतनी सारी तकलीफ़ें सहने के बाद जब अम्मी ने मुझे जन्म दिया तो वो अपने सारे दर्द और तकलीफ़ें भूल गई। उन्होंने जब पहली बार मुझे देखा, बाबा तो खुशी से फूले नहीं समाये जा रहे थे। जब मैं इस दुनिया में आई थी तो बाबा ने पूरे ख़ानदान के साथ पूरे मोहल्ले की दावत की। उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी मेरे पैदा होने पर। मेरी जब पहली सालगिरह हुई तो बाबा ने हमारा घर इस कदर सजाया था जैसे दुल्हन सजी होती है। उन्होंने आधे से ज़्यादा शहर को इनवाइट किया था। इतने सारे खाने बनवाए थे मेरी सालगिरह पर। बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी की तो मुझ में जान बसती थी, उनका बस नहीं चलता था, मैं जहाँ जहाँ चलूँ वहाँ वहाँ वो फूल बिछा देते। इतना ज़्यादा प्यार का आदी कर दिया था उन दोनों ने मुझे। अम्मी और बाबा का प्यार तो मेरे लिए जैसे खुराक बन चुका था। उन दोनों के प्यार के सिवा तो मेरे लिए जीना ही नामुमकिन था। बाबा जान हमारे शहर से थोड़ी दूर एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और आधे से ज़्यादा दिन वहीं पर गुजारते। मेरे पैदा होने से पहले तो अम्मी ये इंतज़ार का वक्त बहुत मुश्किल से गुजारती, और मेरे पैदा होने के बाद उनका सारा वक्त मेरे साथ खेलने में लग जाता। और जब बाबा वापस आते तो अम्मी से मेरे बारे में पूछते और अम्मी को कहते कि मैं सारा दिन वहाँ पर अपनी गुड़िया को याद करता रहता हूँ और सिर्फ यही सोचता हूँ कि कब मेरे घर जाने का वक्त आ जाए, मैं अपनी प्यारी सी बेटी को जाकर देखूं। इसे देखने से मेरी आंखों को ठंडक महसूस होती है और मेरी सारी थकान उतर जाती है। एक दिन जब मैं अम्मी और बाबा जान का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, अचानक अम्मी के नंबर पर कॉल बजने लगी। मैंने जैसे ही फ़ोन अम्मी को उठाकर उनके हाथ में दिया तो अम्मी ने कॉल अटेंड की। फ़ौरन ही जो बात आगे से उन्होंने सुनी थी, सुनते ही बेहोश होकर गिर गई। अम्मी को बेहोश होता और गिरता देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी। हमारी काम वाली मासी जो उस वक्त बर्तन धो रही थी, वो फ़ौरन भागती हुई बावर्ची खाने से बाहर आई और अम्मी को बाजी बाजी कहकर बुलाने लगी। उसने पानी के छींटे अम्मी के मुंह पर मारे, पर अम्मी की तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। हमारी काम वाली मासी भागती गई और दादी जान को बुला कर ले आई। दादी जान मेरे छोटे चच्चू के साथ उनके घर में रहती थी। मेरी दादी जान के 3 बेटे थे, जो कि एक मेरे अब्बू थे जो सबसे बड़े थे, 2 अब्बू के छोटे भाई, पर दादी जान सबसे छोटे वाले चच्चू के साथ रहती थी। काम वाली जल्दी से दादी और चच्चू को बुला कर ले आई। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि क्या खबर है तो उन लोगों का बेहोश काम करना बंद कर गए, क्योंकि फ़ोन पर किसी ने उनको बताया था कि अब्बू जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री को एक सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है और फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी मौके पर दम तोड़ चुके हैं। ये बात सुनने के बाद दादी जान और चची बहुत ज़्यादा रोने लगी और अम्मी तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो बार बार चच्चू को कह रही थी कि मुझे सोनिया के बाबा के पास ले जाओ, मुझे यकीन है मैं उनको आवाज़ दूंगी तो वो उठ जाएंगे। और चच्चू उसको कह रहे थे कि थोड़ी देर में भाई हमारे घर आ जाएंगे, आपको फिर जितनी भी उनको आवाज़ें दे देनी है आप दे देना, हम भी यही चाहते हैं कि शायद आप ही की आवाज़ से वो उठ जाएं।
पर अब उनका उठना नामुमकिन है क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए। और आप इस बात को तस्लीम कर लें, मैं उस वक्त 6 साल की थी और मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि बाबा जान इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये है कि वो वापस कभी नहीं आएंगे। मुझ में इतनी उस वक्त अक्ल नहीं थी और मैं उस वक्त सिर्फ अम्मी की ख़राब तबीयत देख कर ही रो रही थी। अम्मी मुझे गले लगाकर रो रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम्हारे बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैं अम्मी को ये बात कह रही थी कि अम्मी, बाबा जान को थोड़ी सी देर ज़रूर हो जाती है पर वो वापस ज़रूर आते हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बाबा जान तो आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। अम्मी मुझे रो रो कर कह रही थी कि अब की बार वो कभी वापस नहीं आने के लिए गए हैं और अब वो कभी नहीं आएंगे। अम्मी की ये बात मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बाबा के जाने के बाद अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही थी और बाहर से सिर्फ मुझे महसूस नहीं करवाती थी। उनको बाबा जान के जाने का दुख तो था ही, पर मेरी फिक्र उनको ज़्यादा खाई जा रही थी कि अब सोनिया का क्या होगा, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। क्योंकि एक बेवा माँ बच्चे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारती है वो बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि मेरी माँ ने भी अपने बचपन में यतीमी देखी थी, इसीलिए वो बाखूबी इस बात से वाकिफ़ थी। अम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उनका ख्याल रखने वाला भी अब कोई नहीं था। दादी जान चच्चू जान के साथ रहती थी और दिन में 1-2 चक्कर लगा लेती, पर हमारे साथ कभी नहीं रहती। चच्चू जान अम्मी की इतनी ख़राब तबीयत देखकर उनको कभी कभार डॉक्टर के पास ले जाते और अपना ख्याल खुद रखने के लिए कहते। चच्चू जान अम्मी को कहते कि अगर आप अभी से हिम्मत हार जाएंगी तो सोनिया का क्या होगा, आपको अब सोनिया को माँ बाप दोनों बनकर पालना है। पर अम्मी बाबा जान के जाने का दुख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनके पास जो कुछ था वो डॉक्टर के चक्कर लगाकर सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि चच्चू जान की कोई भी नौकरी नहीं थी। एक तो उनकी छोटी सी जनरल स्टोर थी जिससे उनका घर का गुजारा भी मुश्किल से होता। बड़े चच्चू की नौकरी थी पर वो हमसे बात बहुत कम किया करते, क्योंकि शायद उनको इस बात का डर था कि मेरी और अम्मी जान की जिम्मेदारी न उन पर आ जाए। क्योंकि उनकी अच्छी खासी नौकरी थी, उनका गुजारा बहुत अच्छे से होता। उनको इस बात का पता था कि दादी जान हम दोनों की जिम्मेदारी उन पर डाल देंगी, क्योंकि छोटे चच्चू की तो कोई नौकरी थी ही नहीं। और अब तक तो ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। छोटे चच्चू ने जब अम्मी को दोबारा अस्पताल दाखिल करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी को अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने अब्बू की मौत का दुख इस कदर दिल पर ले लिया था जिसने अम्मी को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कुछ दिन बाद जब अम्मी ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई, तब मैं 8 साल की थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं, अब्बू की तरह। पर यह नहीं पता था कि मेरी आगे की ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल गुजरने वाली है। अम्मी के जाने के 2 दिन बाद काफ़ी रिश्तेदार हमारे घर पर मौजूद थे, जो कि सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। कोई मुझे खाना अपने हाथ से खिलाता, कोई घंटों अपने पास बिठाकर प्यार से बातें करता। सब लोग मुझे हसरत भरी निगाहों से देखते। ऐसा लगता कि जैसे अब सब लोग ही सारी उम्र ऐसे ही ख्याल रखेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अम्मी के जाने के 3रे दिन बाद दादी जान ने बड़ी चची पर मेरी जिम्मेदारी डाल दी। बड़े चचा को दादी जान ने कहा कि तुम्हारे छोटे चचा का घर पहले ही मुश्किल से चल रहा है, उसके खुद के छोटे बच्चे, इसीलिए मैं सोनिया की जिम्मेदारी तुम पर डाल रही हूँ। तुम्हारे मरहूम भाई की बेटी है, इसे अपनी बेटी समझकर रख लो। अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम इसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? इसको अपनी किस्मत समझो या मजबूरी, पालना तो अब इसे आप भाइयों में से किसी ने है। चची जान ने पहले तो दादी जान को बहुत बातें सुनाई कि अब मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालें। मेरी अपनी एक बेटी है, मैं तो उसके काम करके थक जाती हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे अपने सर लूँ? दादी जान के काफ़ी समझाने के बाद चचा जान मान गए और मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। अम्मी को गए अभी 3रा दिन था जिस दिन मैं चची जान के घर गई थी। मैंने वो सारा दिन खाना नहीं खाया था और चची जान ने मुझसे कहा था कि बावर्ची खाने में आटा पड़ा है, खुद बना के रोटी खानी है तो खा लो। मैंने जैसे ही रोटी बनाई तो मेरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लग गई। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी रोटी नहीं बनाई थी। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि घर का काम कैसे होता है।
मुझे तो अम्मी ने कभी बावर्ची खाने में जाने तक नहीं दिया कि तुम्हें गर्मी लग जाएगी, तुम बावर्ची खाने मत जाया करो। वो मेरी जिंदगी की पहली रोटी थी जिसने मेरा हाथ जला दिया। मैं जैसे ही चिल्लाई तो चची जान बावर्ची खाने में दौड़ती हुई आई और मेरे हाथ से खींचकर मुझे इतना मरोड़ा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मुझे कहने लगी कि तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी अंदर सो रही है, फिर भी तुम इतना ज़ोर से चिल्ला रही हो। शुरू से तुम इसकी दुश्मन हो। तुम लोग तो मेरी बेटी पर जलते हो, पहले दिन ही अपनी दुश्मनी हम पर जाहिर कर रही हो, इसीलिए हमारे घर में आई हो ताकि हमारा जीना हराम कर सको। चची जान का वो रवैया पहली बार देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अम्मी को उस वक्त याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। चची जान के जुल्म मुझ पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती और मेरे चचा ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखते। जब कभी कभार चचा जान चची को कहते थे कि बच्ची पर थोड़ा रहम कर लिया करो, तो चची जान कहती कि इसकी माँ भी नहीं है, इसको खरीदारी मुझे ही सिखानी है। कल को दूसरे घर जाएगी तो इसके ससुराल वाले मुझे ही कोसते रहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची थी और इसे कुछ भी नहीं सिखाया, पराई बेटी समझकर अपने घर में रखा। इसीलिए चाहती हूँ कि ये अच्छे से खरीदारी सीख ले ताकि कल को कोई भी मेरी परवरिश पर उंगली ना उठाए। चची जान अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती और अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती। वो अपनी बेटी की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती और मुझे कभी भी स्कूल में चचा जान ने दाखिला नहीं दिलवाया। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब भी मेरी चचाजाद बहन जिसका नाम अबीरा था वो पढ़ती रहती तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाया करती। अबीरा कभी कभार मेरे साथ हंस बोल लिया करती क्योंकि मेरे सिवा इस घर में उसका हमउम्र और कोई भी नहीं था। चची जान उसे बहुत मना करती थी कि उस लड़की के साथ मत बैठा करो, उसके साथ बातें मत किया करो, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये कभी भी तुम्हारी खैर खा नहीं है। फिर भी अबीरा का रवैया मेरे साथ है चची जान से कुछ बेहतर होता। ये शायद इसलिए था क्योंकि हम दोनों चचाजाद बहनें थी और हमारा खून का रिश्ता था। अबीरा कभी भी मेरे साथ काम वगैरह में मदद तो नहीं करती थी क्योंकि उनके घर का सारा काम मैं ही करती थी। फिर भी वो कभी कभार मेरे साथ हंस बोल लिया करती थी और ये बात चची जान से कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मेरी बेटी की खुशियों को नज़र लगाओगे, मेरी बेटी से दूर रहा करो, तुम अपने माँ बाप को खा गई हो, अब मेरी बेटी पर तुम्हारी नज़र है। चची जान की इतनी कड़वी बातें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, पर मैं इतनी मजबूर थी कि मैं उनको एक जवाब तक नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर बात कभी मैं चची जान को जवाब दूंगी तो वो मेरा क्या हाल करेंगी। वो हमेशा मेरे खाने के ताने दिया करती थी और कहती थी कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो, तुम मेरे किसी भी काम की नहीं हो, तुम मुझ पर बोझ हो और ये बोझ तुम्हारी दादी ने मुझ पर डाल दिया है। दादी जान कभी कभार मेरे पास चक्कर लगाया करती थी। वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारी चची का रवैया तुम्हारे साथ बहुत ही सख्त है, ये बात तो मुझे मालूम है, पर बेटा तुम्हें हर बात बर्दाश्त करनी है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था और किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। आज अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम झूलों में झूल रही होती क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तुम्हारे पैदा होते ही तुम अपनी किस्मत लिखवा कर लाई थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। अब सोचती हूँ कि तुम्हारी तो शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी कर दूं तो बेफिक्र होकर सुकून की मौत मर सकूं। जवान बेटे की मौत ने तो मुझे पहले ही मार दिया है, अब एक तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपने घर का कर दूं तो सुकून की सांस लूं। दादी ने उस दिन बताया कि तुम्हारे लिए अब रिश्ता देखना शुरू कर दिया है, जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता नज़र में आ जाता है तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मेरे पास तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जमा है वो तुम्हारे जहेज के लिए रखा है। अगर तुम्हारी शादी से पहले मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारी चचियाँ तुम्हें कुछ भी नहीं देंगी और सारी उम्र तुम्हें ऐसे ही नौकरानी बनकर अपने पास रखेंगी। चची जान के कान पर जैसे ही यह खबर पड़ी थी कि दादी अम्मा मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं और उन्होंने मेरे लिए थोड़ा बहुत जेज भी जमा किया है,
तो चची दादी अम्मा को कहने लगी कि अबीरा अबीरा भी आपकी पोती है, उसके लिए तो आप थोड़ी बहुत फिक्रमंद हो जाया करें। सारा प्यार तो अपनी इसी पोती पर लुटाती हैं। मान लिया कि इसके माँ बाप नहीं हैं और ये एक यतीम बच्ची है, पर रिश्ता तो हमारी बेटी के साथ भी है ना आपका। उस पर तो आपने कभी भी प्यार से हाथ नहीं फेरा। लगता ही नहीं है कि आपका हमारे साथ भी कोई रिश्ता है। हम तो जैसे पराए हैं, आपके सगे तो लगते ही नहीं है। भला अबीरा के बाप को कहीं रास्ते से उठाया था क्या? और ये आपकी सगी औलाद के बच्चे हैं। चची जान के ताने तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मुझसे तो कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, पर अगर दादी जान आकर मुझसे थोड़ा बहुत प्यार जिता दिया करती तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अबीरा मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और चची जान ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। अबीरा रंगत में मुझसे थोड़ी सांवली थी, मेरा रंग एकदम से गोरा चिट्टा था। वो सारा दिन बैठकर खाती थी, इसीलिए थोड़ी मोटी हो गई थी। क्योंकि मैं सारा दिन घर का काम काज करती रहती, इसीलिए मैं मोटी नहीं हो पाती थी और दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। चची जान ने एक दिन मुझसे कहा कि अबीरा का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आ रहा है, काफ़ी बड़ा ख़ानदान है और बहुत अच्छे लोग हैं। वो अमीर लोग होंगे, इसीलिए अच्छे अच्छे खाने खाते होंगे। तो तुम बहुत ही अच्छा बंदोबस्त करो और बहुत ही अच्छा एहतमाम करो उन लोगों के लिए। मुझे उस दिन दिल से खुशी हुई थी कि मेरी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हो रहा है। मैंने हर चीज़ बहुत दिल से बनाई थी, जो जो चची जान ने मुझे बनाने को कहा। चची जान ने वो सारा दिन अबीरा को तैयार करने में लगा दिया। उसको पार्लर लेकर गई और उसको बहुत ही खूबसूरत और महंगा जोड़ा पहनाया। अबीरा उस दिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं सारा दिन किचन के काम करके इस कदर थक गई थी कि मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत थी। मेहमान आ गए थे और मैंने वो सारा खाना टेबल पर लगा लिया। चची जान ने मुझे मेहमानों के सामने आने से सख्ती से मना कर दिया, इसीलिए मैंने चची जान को बता दिया कि मैं टेबल पर खाना लगा दूंगी और फिर आप लोग आकर खाना खा लेना। मैंने जैसा उनको कहा तो वैसा ही किया। वो लोग खाना खा रहे थे कि अचानक उस लड़के की माँ के कपड़ों पर सालन लग गया और वो धोने के लिए बाहर आई। वो जैसे ही बाहर आई तो मैंने उनको देखकर फौरन सलाम किया। उनके कपड़े साफ करवाने में उनकी मदद की। उन्होंने मुझे वहीं पर पूछ लिया कि बेटा तुम कौन हो? मैंने उनको बता दिया कि अबीरा मेरी चचाजाद बहन है। वो मुझसे अम्मी और बाबा के मुतालिक पूछ रही थी, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे अम्मी और बाबा का तो इंतकाल हो गया है और मैं यहाँ चची जान के साथ रहती हूँ। उन्होंने मुझे उसी वक्त बोला था कि बेटी तुम बहुत प्यारी बच्ची और कितना मीठा बोलती हो। चची जान के पास जाकर उस औरत ने मेरे बारे में बात करना शुरू की। तो चची जान उस औरत को बोल रही थी कि बहुत ही मनूस लड़की है, अपने माँ बाप को खा गई। जब से मेरे घर में आई है मेरे घर के हालात बहुत ही बिगड़ने लगे। चची जान उस औरत के सामने मेरी बुराइयां करते नहीं थक रही थी। वो औरत चची जान को ऐसे देख रही थी जैसे एक जालिम किसी पर जुल्म करता है और हम वो जुल्म होता हुआ नहीं देख पाते। वो लोग रिश्ता पक्का किए बगैर वहां से चले गए और चची जान इस गलत फहमी में गुम थी कि अब ये रिश्ता होकर रहेगा। कुछ दिन बाद जब उस लड़के की माँ ने चची जान को फ़ोन करके कहा कि हमें आपकी बेटी नहीं, आपके जेठ की बेटी जो आपके घर में रहती है वो पसंद है, अगर आप हमें उसका रिश्ता दें तो मेहरबानी होगी। चची जान ने उसी वक्त उस औरत को फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाई और कॉल ख़त्म होते ही मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी कि तुम मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन हो। तुम तो शुरू से यही चाहती हो कि उसका रिश्ता कभी अच्छे घराने में ना हो। मैंने तुम्हें जब मना भी किया था कि उन लोगों के सामने मत आना, तुम जानबूझकर उन लोगों के सामने आई हो जैसे मेरी बेटी का रिश्ता ना हो पाए और वो लोग तुम्हें पसंद कर ले। मैंने चची जान को बोला कि मैं उनके सामने नहीं आई थी, वो औरत खुद ही बाहर आई थी। मैंने उनको कुछ नहीं कहा था, वो खुद ही मुझसे बातें करने लग गई। चची जान को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो यही कह रही थी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, जैसे उस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। पर मैं जितनी भी कस्में खा रही थी चची जान को मेरा यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन चची जान ने दादी को बुलाकर ये सारी बात बताई थी और उनको कहा था
कि इस मनूस का कहीं ना कहीं जल्दी से रिश्ता कर दें, वरना ये मेरी बेटी की खुशियां खा जाएगी और मेरी बेटी का कभी भी घर बसने नहीं देगी। दादी जान ने जब चची को कहा था कि इतनी जल्दी मैं अब इसका रिश्ता कहाँ से लाऊंगी, अच्छे रिश्ते आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए, तो चची जान ने कहा था कि आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, मैं इसका खुद ही किसी जगह रिश्ता कर दूंगी। क्योंकि मेरी सारी जिम्मेदारी चची जान ने उठाई थी और मैं उन्हीं के घर पर रहती थी, इसीलिए दादी जान भी कुछ बोल नहीं पाई और उन्होंने चची जान को कहा था कि जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो, पर मेरे मरहूम बेटे की निशानी है किसी अच्छी जगह रिश्ता करना, जैसे क़यामत के दिन मैं अपने बेटे के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। चची जान ने बीरा के बजाय मेरे रिश्ते की तलाश जारी रखी। कुछ दिन बाद एक औरत हमारे घर आई। चची जान ने मुझे कहा कि चाय लेकर फौरन इनके पास आ जाओ। जैसे ही मैं चाय लेकर उनके पास पहुंची तो चची जान ने मुझे कहा कि सोनिया बेटी, इनको सलाम करो, ये तुम्हारी होने वाली सास है। चची जान ने उस दिन पहली बार मुझे बेटी कहकर बुलाया था। उनका ये रवैया देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाकर अपने साथ बिठाया और पूछने लगी कि बेटा तुम कैसी हो। मैंने उनको कहा था कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उस औरत ने चची जान को कहा कि आपकी लड़की हमें बहुत ही पसंद है, हम जल्दी शादी की तारीख लेने आएंगे। चची जान ने कहा था कि बाद में शादी की तारीख लेने की क्या ज़रूरत है, आप अभी से शादी की तारीख पक्की करके जाएं और ज़रूरत नहीं है कोई शादी में फजूल खर्ची की, सादगी के साथ निकाह कर लें और अपनी बहू को साथ ले जाएं। चची जान की बातें उस वक्त मुझे बहुत हैरान कर रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। उस औरत के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अम्मी बाबा को याद करके रो रही थी, क्योंकि अगर आज वो जिंदा होते तो मेरी शादी धूमधाम से करवाते और किसी अच्छे घर में करवाते, क्योंकि मैं उन सब पर बोझ बन गई थी। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती थी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। कुछ ही दिन के बाद चची जान ने मेरा निकाह उस औरत के बेटे के साथ करवा दिया, जिसको मैंने अभी तक नज़र भर कर देखा तक नहीं था। शादी में दादी जान और मेरे छोटे चचू भी शामिल थे। सबके चेहरे पर इस कदर उदासी छाई थी कि जैसे किसी की मौत हो गई हो। इस बात से मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो लोग भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो मेरा गुजारा वहाँ कैसे होगा। निकाह के बाद वो औरत मुझे अपने साथ घर लेकर आई थी। उस औरत ने, जो कि अब मेरी सास थी, मुझे एक कमरे में बिठा दिया जहाँ पर एक बहुत ही पुराना बेड पड़ा हुआ था और कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। कुछ ही देर के बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आया था और मेरे साथ आकर उस बेड पर बैठ गया। जैसे ही वो बेड पर बैठा तो मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी, जो कि शराब की थी। मैंने फौरन उनसे सवाल किया कि क्या आप शराब पीते हैं, तो उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और सहम कर एक कोने में बैठ गई। मैं वहाँ पर रो रही थी और मुझे चुप करवाने वाला कोई भी नहीं था। मेरा शौहर क्योंकि शराब पी कर आया था तो उस नशे में धत लग रहा था, उसे कोई भी होश नहीं था। वो अपने जूते पहनकर ही बेड पर सो गया और पता नहीं नशे में क्या कुछ बोले जा रहा था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और वो सारी रात मैंने रोते हुए गुजारी थी। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी उस शराबी के साथ गुजरने वाली है, जिसने पहली रात ही मुझ पर हाथ उठाया है, तो आगे चलकर मेरा क्या असर करेगा। मैं अपनी किस्मत पर उस रात इस कदर रो रही थी जितना मैं अम्मी और बाबा की मौत पर भी शायद न रोई थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं देखा था, बस कभी ये ख्वाब देख लिया था कि शायद मुझे शादी के बाद थोड़ा सा सुख नसीब हो जाए। पर अब तो मेरा वो ख्वाब भी टूट चुका था, क्योंकि मुझे उस पहली रात में ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरी सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। सारी रात रोने के बाद जब सुबह हो गई तब मेरी सास ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोला तो मेरी सास ने मेरे शौहर को बेड पर ऐसे लेटे देखा तो मुझे कहने लगी कि कभी कभार शराब पी लेता है, अब तुम आ गई हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे जल्दी से सुधार लोगी
اور مجھے کہنے لگی کہ اب جلدی سے باہر آ جاؤ، پورے گھر کا کام پڑا ہے، اگر کر لو تو تمہارا گھر ہے، اب تمہیں ہی تو سنبھالنا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی اس گھر کی غلامی دیتے ہوئے گزار دی ہے، اب تمہارے آنے کے بعد شاید تھوڑا سا ہی سکون مل جائے۔ اور کہنے لگی کہ جب کام کر کے ختم کر دو تو میرے پیر آ کر دبا دینا، بہت تھک گئی ہوں، تمہاری شادی میں بھی۔ اس شرابی کے کمرے سے اس وقت میں نکلنا چاہتی تھی تو اس عورت کے کہنے پر جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی اور کام کرنے لگی۔ مجھے کام کرنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی کیونکہ چچی جان نے بچپن سے ہی مجھ پر کام کا پریشر ڈال دیا تھا اور مجھے اب عادت ہو گئی تھی۔ مجھے کام کرنا ذرا بھی مشکل نہیں لگتا تھا، میں مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر دیتی تھی۔ میرے سسرال کا گھر بہت ہی زیادہ گندا لگا تھا مجھے۔ میں نے وہاں پر سارے گھر کی صفائی کی اور بہت سارا گند وہاں سے نکال کر باہر پھینکا۔ میں نے کچن کی صفائی بہت اچھے سے کی، برتن اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھے اور سارے باورچی خانے کو چمکا دیا۔ میری ساس تو دیکھ کر حیران ہو گئی، ان کو ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آ رہی تھی اور ان کو تو میرا کام بھی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ میری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہو، تمہارا گھر ہے، اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، جو چیز جہاں پر رکھو گی تمہیں ہی وہاں سے اٹھانی ہے، کیونکہ سارا کام تو تم نے ہی کرنا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر کو سنبھالنے میں ہی گزاری ہے۔ اس عورت کی کڑوی باتیں مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں کر رہی تھی کیونکہ چچی جان کی اتنی کڑوی باتیں سن کر مجھے عادت ہو گئی تھی۔ بس ڈر لگ رہا تھا تو مجھے اپنے شرابی شوہر سے، جس نے پہلی رات ہی مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا شوہر نیند سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا اور آتے ہی ناشتے کا پوچھ رہا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، جس پر انہوں نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بولا تھا کہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرا ناشتہ تیار کیوں نہیں کیا تھا۔ میری ساس سب کچھ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی اور وہ بھی مجھے بول رہی تھی کہ تمہیں اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے اور آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کا کھانا اور ناشتہ دونوں تیار کر دینا۔ وہ تھوڑا غصے کا تیز ہے، اسی لیے اب تمہیں اس کی ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے، جیسے اس کو کسی بات پر غصہ نہ آئے۔ میرا شوہر اب تو بات بات پر مجھے مارتا تھا، اس کی اس عادت سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس دن اس نے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ ان 6 مہینوں میں 2 بار میں امید سے ہوئی تھی اور اپنے شرابی شوہر کی مار کی وجہ سے، ان کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے دونوں بار ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میری ساس ہر بار بیٹے کی طرف سے بولتی تھی اور مجھے یہی کہتی تھی کہ تم ہی اس کا خیال نہیں رکھتی ہو، اس کو غصہ دلاتی ہو اور ان سب کی وجہ تم ہی ہو۔ میرے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ خالی نہیں تھا جس پر مارنے کے نشان نہ بنے ہو۔ مجھ میں اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرنے کی بالکل طاقت نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگتا کہ اب اگر اس نے مجھے مارا تو میرا دم نکل جائے گا، اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ میری زندگی ختم ہو جائے تو میری جان یہاں سے چھوٹے۔ میرا شوہر گھر سے نکل جاتا تھا تو میں سکون کا سانس لیتی تھی، پر جیسے جیسے اس کے گھر واپس آنے کا وقت آتا تھا تو میری سانسیں اٹکنے لگتی تھی۔ ایک دن میری ساس کے ساتھ میرا بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا اور میری ساس مجھے دھمکیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ آنے دو میرے بیٹے کو، آج میں تمہیں بتا کر ہی رہوں گی۔ مجھے میری ساس کی دھمکیوں سے بہت ہی ڈر لگنے لگا کیونکہ میرا شوہر مجھے پہلے ہی بہت مارتا تھا۔ اب اگر اس کی ماں نے میری شکایت اس کے ساتھ لگا دی تو وہ تو میری جان ہی لے لیتا۔ ڈر کے مارے میں اپنے گھر سے ہی بھاگ گئی اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور میری چچی اور دادی نے میری خبر تک نہیں لی تھی کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ یہاں پر میرا جہاں سسرال تھا میرا کوئی اور جاننے والا بھی نہیں تھا کیونکہ میرے شوہر نے اور میری ساس نے کبھی بھی اس محلے میں کسی کے گھر مجھے جانے نہیں دیا تھا، اور میرا شوہر شرابی تھا اسی لیے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہ آتا۔ میں اس محلے سے بھاگتی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔
भागते भागते मेरा सारा दिन गुजर गया और रात होने लगी थी। मैं सारे दिन की भूखी थी। मैंने पानी तक नहीं पिया था। मुझे प्यास इतनी लगी थी कि मैं अपना पानी पीना चाहती थी। अगर मुझे पानी ना मिलता तो शायद मैं उस दिन बच ना पाती। उस वीरान सी जगह पर मुझे एक कच्चा सा मकान दिखाई दिया। मैं पानी की तलाश में वहां गई। मुझे यकीन था कि उस घर में मुझे कोई ना कोई पानी जरूर पिला देगा, क्योंकि पानी पिलाना बहुत ही सवाब का काम है। क्योंकि पानी पिलाने के लिए कोई किसी को मना कर ही नहीं सकता। मैं जैसे ही उसके घर के पास पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दरवाज़ा खटखटाना चाहा तो दरवाज़ा मेरे हाथ लगाने से पहले ही खुल गया। वो घर जो बाहर से कच्चा था, पुराना लग रहा था। जब मैं अंदर गई तो एक खूबसूरत बंगला बना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो बाहर से इतना पुराना नजर आने वाला घर है, ये अंदर से इस कदर खूबसूरत था। जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत भारी आवाज में आवाज सुनाई दी, आ जाओ सोनिया, इस घर को अपना घर ही समझो। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि जो कोई भी यहाँ रहता था वो मेरा नाम कैसे जानता है, क्योंकि मैं बहुत दूर निकल आई थी। वहां पर कोई जान पहचान नहीं थी, ना ही मैं किसी को पहचानती थी। फिर फौरन आवाज आई, क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं पानी की तलाश में वहां आई थी। मैंने उन्हें फौरन बोल दिया कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे प्यास लगी है, आपकी मेहरबानी होगी मुझे पानी का गिलास पिला दें। उस भारी आवाज में बोलने वाले मर्द ने मुझे कहा कि हम 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ वो चीज मिलेगी जो तुम चाहती हो। मैं सोचकर हैरान हो रही थी कि मेरी तो उम्र अभी 19 साल थी, ये लोग 20 साल से कैसे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे पानी मांगा था। फौरन उन्होंने मुझे खूबसूरत से गिलास में, जो कि पीतल का बना था और बिल्कुल सोने की तरह लग रहा था, मेरे सामने पेश किया। वो पानी कोई भी मेरे पास नहीं लाया, खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने फौरन पी लिया। मैंने जैसे ही पानी ख़त्म किया, उस भारी आवाज़ ने मुझे कहा कि जितना वक्त यहाँ रहना चाहती हो रह लो, क्योंकि हमें पता है कि तुम पर बहुत जुल्म हुए और तुम्हारे पास कोई भी इस दुनिया में सहारा नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि तुम बिन माँ बाप की एक यतीम बच्ची हो। मैंने उनसे बोला कि आप लोग कौन और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? वो जो कोई भी था, आप जो भी हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते? उन लोगों ने मुझे बताया कि उस जंगल में एक दरगाह है। 20 साल पहले तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर आए थे और तुम्हारे पैदा होने की दुआ मांग रहे थे। उनकी ये दुआ उस दरगाह पर कबूल हो गई थी। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। हम लोग उस वक्त बहुत भूखे थे, हम लोगों को 3 दिन से खाना नहीं मिला था। तुम्हारी माँ उस दिन हमारे लिए बहुत सा खाना लेकर आई और उसी दरगाह पर रख कर चली गई। हमने खाना पेट भर कर खाया और तुम्हारी माँ को बहुत दुआएं दी। हमने सोच लिया था कि अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया तो तुम्हारी माँ की मदद करेंगे। और आज जब तुम्हें इस जंगल में आते देखा तो बहुत खुशी हुई कि हमें तुम्हारी माँ का एहसान चुकाने का मौका मिल रहा है। उस दिन उसने हमें भूखों को खाना खिलाया था। आज हम उसकी बेटी की मदद करेंगे और उसको खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। उन लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग इंसान नहीं है, जिनजाद हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत डरने लगी और वहां से जाने की कोशिश करने लगी तो उन लोगों की आवाज़ ने मुझे पुकारा और कहने लगे, सोनिया बेटी, डरो नहीं। अगर तुम चाहोगी तो हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारी माँ का वो एहसान जो उसने हम पर किया था वो उतारना चाहते थे। हम तुमको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें पता है इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम जितनी मर्जी यहाँ पर रह लो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हमें ये मौका बहुत सालों बाद मिला है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम हमारे गरीब खाने में कुछ दिन रह लोगी। उन्होंने मुझे बताया कि हम 3 जिनजाद हैं और तीनों यहीं पर रहते हैं। अगर तुम यहाँ रहना चाहोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे और ये अपना घर तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम्हें यहाँ हर सहूलत मिलेगी, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। इतने वीरान जंगल में यहाँ पर अकेली कैसे रह सकती हूँ? फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि हम अपनी कुछ मुलाजिम लड़कियां तुम्हारे पास छोड़ कर देंगे, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ऐसा कहने पर वहाँ 3 लड़कियां आ गई जो मेरे लिए बहुत ही लजीज खाना लेकर आई। वो तीनों लड़कियां मेरा ऐसा ही ख्याल रख रही थी जैसे मैं उनकी कोई मलिका हूँ और वो मेरी मुलाजिम। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा इस तरह कोई ख्याल रखेगा।
میں خود کو اس وقت بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی پچھلی زندگی کے سارے غم بھلا دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی باقی کی زندگی انہی لوگوں کے ساتھ گزاروں گی۔ وہ تینوں جن ذات میرے سامنے آ گئے تھے اور وہ تینوں میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی بہت ہی سکون کے ساتھ گزرنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔